Good evening, everyone. It is my pleasure to introduce today's session moderator, Ms. Pooja Upadhyay. Ms. Pooja Upadhyay is a dedicated educational facilitator at Vibjir High, Yelhunka, Bangalore, where she is committed to fostering an engaging and supportive learning environment for her students. She holds a Bachelor of Commerce degree from Bangalore and is currently pursuing a Bachelor of Education at Bangalore City University to enhance her teaching methodologies and educational expertise. Since embarking on her professional journey, Ms. Upadhyay has shown a strong dedication to the field of education. Her innovative approach to teaching, coupled with her ability to connect with students on a personal level, has made her an integral part of her institution. Ms. Upadhyay is deeply committed to caring young children and believes in the transformative power of education. With her dedication and enthusiasm, she aims to make a lasting impact on her students' academic and personal growth, aspiring to create a brighter future for the next generation. Hearty welcome, Ms. Pooja. Please proceed. The stage is yours. जो बना और दे सही गलत की पहचान, देश के उन शिक्षकों को मेरा सत सत प्रणाम। शिक्षा के दीप जलाने वाले सभी शिक्षकों को शुभ संध्या। एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की ओर से आयोजित किए गए आभासी प्रशिक्षण सत्र का आरंभ करते हुए मैं पूजा उपाध्याय आपकी मॉडरेटर के रूप में सभा में उपस्थित समस्त हिंदी सेवियों, निर्देशक डॉक्टर सलाम सर, कार्यक्रम समन्वयक श्री बीजू पिल्लई सर और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री मिलिंद जाधव जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सत्र को गतिमान करने से पूर्व मैं समस्त प्रतिभागियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों से अवगत कराना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि सत्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए दृढ़ता पूर्वक इसका पालन किया जाएगा। प्रतिभागियों से निवेदन है कि वह अपने माइक म्यूट पर रखें। प्रतिभागी अपने संवाद चैट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। स्थिति अनुसार सत्र के दौरान अथवा अंत में उनके समाधान अवश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र के अंत में सांकेतिक हस्तचिन्ह का प्रयोग करें और अपने नाम पुकारे जाने पर वह अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र हेतु सर्टिफिकेट एवं फीडबैक लिंक को भरना आवश्यक होगा, जो सत्र के अंत में चैट बॉक्स के माध्यम से दी जाएगी। प्रतिभागियों से धैर्य और सहयोग की भावना की अपेक्षा है। कार्यक्रम संचालन हेतु मुझे चयनित कर यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं इस संस्था के संस्थापक और निर्देशक डॉक्टर सलाम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यह बहुमुखी प्रतिभा में व्यक्तित्व रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकी क्रांति को ध्यान में रखते हुए शिक्षक समुदाय को एक अद्भुत मंच देने का प्रशंसनीय कार्य बेहद सफलतापूर्वक कर रहे हैं। डॉक्टर सलाम सर एक शिक्षाविद हैं जिनके पास शैक्षिक क्षेत्र में 29 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। आप सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन और मास्टर ट्रेनर भी हैं। बीटेक और अब एक्स्ट्रा माइल शिक्षा और प्रशिक्षण के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत हैं। मैं गर्व और पूरे सम्मान के साथ सभा में उपस्थित सभी हिंदी सेवियों की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और सभी को संबोधित करने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू सलाम सर। बहुत धन्यवाद पूजा जी एंड नमस्ते सबको, शुभ संध्या। It is very happy to see Mr. Milind Jadhav on board Extra Mile again. Thank you so much, sir, for offering this particular topic, which we have never dealt with in Hindi language. So today, Hindi language teachers are going to get benefited from this particular session. We are pretty sure that lots of inputs have been planned by Milind sir. Like his last session, it was a wonderful session. He gave us on integrating SDGs with Hindi teaching. So that was an awesome session with lots of experience and expertise shared by Milind Jadhav Singh. So thank you so much, sir. And thank you, sir. Biju sir, thank you so much for your help and presence, and very happy to see each and everyone. Hearty welcome once again. And happy to see Mr. Srijit. Srijit sir, he is from my school. Thank you for joining.
a lot of educators have joined. Looking forward to this particular topic, as I am also looking forward to learn how multiple intelligences are playing their role in learning Hindi language for the successful, journey of students. So thank you so much for joining. Hearty welcome once again. Let's sit back and enjoy. Over to the moderator. Pooja ma'am, over to you. Thank you so much. धन्यवाद सर। इस उम्मीद से कि आपका मार्गदर्शन हमें सदैव इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। हम सत्र को अग्रसर करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम समन्वयक श्री बेजू पिल्लई सर का। श्री बेजू पिल्लई सर का शिक्षा में व्यापक अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया है। आप एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन के और ट्रेनिंग के सह निर्देशक भी हैं। सर, हमें आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का हमारे साथ होना वास्तव में सम्मान की बात है। महोदय, आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम सभी आपसे कुछ प्रेरणादायक शब्दों की अपेक्षा रखते हैं। ओवर टू बेजू सर। धन्यवाद पूजा मैम। आदरणीय प्रोग्राम निदेशक डॉक्टर अब्दुल सलाम सर, आज के रिसोर्स पर्सन मिलिंद जाधव सर, और यहाँ इस सभा में उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज का विषय शैक्षणिक सफलता में बहुबुद्धिमत्ता की भूमिका। तो इस विषय में हम पहले एक मीटिंग हो चुका है, और इसका पूर्ण लक्ष्य हर बच्चे की विशेषताओं, उनकी सफलता के लिए प्रयत्न करना, उनकी विशेषताओं को पहचानना और हर एक छात्र के उस विशेष गुणों को पहचान कर उनकी ओर श्रद्धा लाना, और रोचक और व्यावहारिक रूप से विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बढ़ाना हमारा मूल उद्देश्य है। उसी प्रकार सिर्फ किताबों का ज्ञान के अलावा संपूर्ण विकास हर एक छात्र को देना एक उच्च शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो जहां वो कमजोर माने जाने वाले छात्र, उनको भी और प्रतिभाशाली बनाना सभी आज के इस प्रोग्राम का पूर्ण लक्ष्य है। तो मैं पूर्ण रूप से इस प्रोग्राम के लिए मिलिंद जी को स्वागत करता हूं, और एक अच्छे शाम की धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। इन प्रेरणादायक शब्दों हैं तो आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं हमारे पथ प्रदर्शक और हम सबके प्रिय श्री मिलिंद जाधव जी का पुनः स्वागत करती हूँ, जिन्होंने इस मंच पर संसाधन कार्यकर्ता के रूप में जुड़कर इसे खास बना दिया। आप न केवल हिंदी, संस्कृत और मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं के विद्वान अध्यापक हैं, बल्कि एक प्रेरणास्पद मार्गदर्शक, ओजस्वी वक्ता और संवेदनशील कवि भी हैं। पिछले 29 वर्षों से आप शिक्षा जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ते आ रहे हैं। आपने सीबीएसई, आईसीएसई, कैम्ब्रिज तथा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन कार्य किया है। आपकी प्रशिक्षण यात्रा ने मुंबई से लेकर किंगडम ऑफ ओमान और अब किंगडम ऑफ बहरीन तक का प्रेरणादायक सफर तय किया है। आपकी विद्वता केवल कक्षा तक सीमित नहीं रही, आपने शैक्षणिक रचनात्मक लेखन और पाठ्यक्रम समाधान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपकी 25 से भी अधिक पुस्तकें चेतना पब्लिशर द्वारा प्रकाशित की गई हैं, जो आज भी शिक्षकों और छात्रों के लिए एक अमूल्य संसाधन है। आपको रोटरी क्लब, दीनदयाल संस्था, बीएनएचएस, रविंद्र शिक्षक पुरस्कार जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया है। ओमान स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा आपको सृजन कवि पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और सबसे गौरव की बात यह है कि आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के कर कमलों से शिक्षक सम्मान प्राप्त हुआ है।
आपका साहित्यिक जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जैसे साहित्य सम्राट के सानिध्य में 8 वर्षों तक आपका साहित्यिक मार्गदर्शन हुआ, जो अपने आप में एक बहुमूल्य उपलब्धि है। अब मैं आदरणीय मिलिंद सर से निवेदन करती हूँ कि आज का जो हमारा विषय है, हिंदी में शैक्षणिक सफलता के लिए बहुबुद्धि आदि के बारे में हम सभी को अपने विस्तृत ज्ञान से अवगत कराएंगे और हम सब आपके ज्ञान से प्रकाशित होंगे। ओवर टू मिलिंद सर। नमस्ते पूजा जी, नमस्ते। क्या आप नमस्ते मुझे सर। सुन सकते हैं? जी हाँ सर जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। सर्वप्रथम बहन पूजा जी का हार्दिक आभार, आपने बड़ी ही बखूबी से मेरा परिचय करवाया। आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद सर। आदरणीय सलाम सर एवं बिजू सर को सादर नमन। आपके प्रोत्साहन से कार्यशाला हेतु नई प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई। आपका हृदय से आभार। आपने हमें इस मंच तक पहुंचाया। उसका इस आभासी मंच से मैं आपका स्वागत करता हूं। समन्वयिका पूजा जी का भी हार्दिक आभार, जिनकी सूझबूझ से कार्यक्रम में सुंदर समन्वय संभव होगा। पूजा जी, आपकी वाणी मधुर एवं प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली है, जो सभी श्रोताओं के मन को छू लेने में सक्षम है और जिससे सभी परिचित है। आपका भी इस आभासी मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्यशाला की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। तो अब मेरे सामने यहाँ पर आभासी मंच पर प्रस्तुत है सभी अध्यापक। शिक्षक वे दीपक है जो स्वयं जलकर औरों को प्रकाश देता है। शिक्षक व दीपक है जो स्वयं जलकर औरों को प्रकाश देता है। तो हम सारे शिक्षकों का, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम कार्यशाला की शुरुआत एक गतिविधि से करते हैं। आप सभी के समक्ष एक चित्र प्रस्तुत है। आपको उस चित्र पर गौर फरमाना है और मुझे बताना है कि चित्र में क्या हो रहा है। यस, आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। हाँ जी, रोहिणी मैम बोल रही हैं कि परीक्षा हो सकता है सर। परीक्षा हो सकता है। परीक्षा, जानवरों की परीक्षा है। और कोई कुछ कह रहा है? सर बहुत सारे कमेंट यही आ रहे हैं, एग्जाम परीक्षा। हाँ, एग्जाम परीक्षा है, हाँ परीक्षा हो रही है। तो देखो, यहाँ पर सामने एक पेड़ है, इन जानवरों के पीछे एक पेड़ है और सभी जानवर वहां पर कतार में खड़े हैं और एक महाशय जी वहां पर बैठे हैं और वो उनसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वहां पर? इंग्लिश में लिखा है, अंग्रेजी में क्या लिखा है? क्या मैं पढ़ूं सर? हाँ, पढ़िए मैम, पढ़िए। For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. पेड़ पर चढ़ना है, सभी जी। जानवरों को पेड़ पर चढ़ना है। तो अब सभी जानवर पेड़ पर कैसे चढ़ेंगे? यस, सभी अध्यापक। यस, Not fair for everyone, sir. नॉट फेयर फॉर एवरीवन। क्यों नहीं है? सभी को, पुष्पा सभी मैम के बोल साथ रही हैं असंभव है। असंभव है। सबकी क्षमता अलग अलग है। क्या सबकी क्षमता अलग अलग है? सबके पास जो क्षमता है, प्रतिभा है, वो एक ही है, भिन्न है या अलग अलग है? हाँ जी, अलग अलग है सर। सुमा अलग मैम अलग बोल है, रही है अलग अलग है। अलग अलग है, बराबर है। तो हम इस चित्र को अपनी शिक्षा प्रणाली से जोड़ सकते हैं। तो किस प्रकार? तो यह स्थिति जो है हार्वर्ड गार्डन के मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत से जुड़ी हुई है। पेड़ के नीचे हाथी, बाघ, बंदर
आदि जानवर खड़े हैं, और अगर सभी से कहा जाए कि पेड़ पर चढ़े तो सिर्फ बंदर आसानी से चढ़ पाएगा, क्योंकि वह शारीरिक रूप से उस कार्य के लिए उपयुक्त है। उसी तरह इंसान की बुद्धिमत्ता भी अलग अलग होती है, भिन्न होती है। कोई शारीरिक रूप से कुशल होता है, कोई भाषाई रूप से, कोई तार्किक, कोई संगीतात्मक, तो कोई सामाजिक रूप से। अगर हम सभी से एक ही तरह की योग्यता की अपेक्षा करें तो यह उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं की अनदेखी होगी। जैसे जानवरों के अलग अलग गुण होते हैं, वैसे ही बच्चों में भी अलग अलग बौद्धिक क्षमताएं होती है। हर व्यक्ति को उसकी अपनी विशेषता और क्षमता के अनुसार समझना और अग्रसर कर देना चाहिए। यही मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है। हाँ जी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जी सर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए जरा, पूजा बहन पढ़िए। We are all smart in our हाँ। own way. We all have our part to play. Yes, we all are smart. We all are smart in our own way. हमारे पास अपनी अपनी प्रतिभा है, अपनी अपनी क्षमता है। हर एक बच्चा यूनिक है, अद्भुत है, अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है। तो हर एक के पास प्रतिभा है, उसे हमें परखना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पूजा बहन जरा पढ़िए। जी सर। हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता। बुद्धिमत्ता के कई प्रकार होते हैं। हार्वर्ड गर्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। yes. उसने जो थ्योरी दी है उसका एक ही मूल मंत्र है, सिद्धांत है, आई एम यूनिक। मैं एक अद्भुत हूँ, मैं एक अद्भुत छात्र हूँ, मैं एक अद्भुत अध्यापक हूँ। हर एक की क्षमता अलग अलग है, हर बच्चा एक जैसा नहीं सीख सकता। इसलिए हम कक्षा में अलग अलग प्रकार की अध्यापन प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धिमत्ता एकल नहीं, वो अनेक है, उसके कई प्रकार हैं। हर व्यक्ति में विभिन्न बुद्धिमत्ताएं होती है। बच्चों की विविध क्षमताओं को समझने में ये मल्टीपल इंटेलिजेंस हमारी सहायता करता है। जब हम कक्षा में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के भिन्न प्रकार के छात्र हमारे सामने होते हैं। हर एक के पास जो क्षमता है, प्रतिभा है, वो अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। अध्यापक का कार्य है उसे पहचानना। देखो 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता यहाँ पर मैंने प्रस्तुत की है। 9वीं भी है अस्तित्ववादी, लेकिन अभी हम 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता पर चर्चा करेंगे। तो ये 8 है, कौन कौन सी? बहन जरा पढ़िए। पहली है भाषाई बुद्धिमत्ता, दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, तीसरी है स्थानिक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट शारीरिक काइनेटिक बुद्धिमत्ता, संगीतीय बुद्धिमत्ता, अंतर व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, अंतः व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। तो ये बुद्धिमत्ता के प्रकार है कि इसकी जान, इसकी समझ हमारे पास होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक पहेली है। पहेली में है, मैं बोलता हूँ बिन जुबा के, कागज पर चलता हूँ पाव के, कभी कविता कभी संवाद, मेरे बिना है भाषा अद बनाओ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। ये कौन सी प्रतिभा है? ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? अध्यापक मुझे चार्ट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं? अध्यापक गण, मैं बोलता हूँ बिन जुबा के, कागज पर चलता हूँ पाव के, कभी कविता कभी मनीषा संवाद। मैम बोल रही हैं कलम। कलम है, ये कलम है। कौन सी प्रतिभा? तो कलम किस में आएगी? कौन सी बुद्धिमत्ता? अब हमने 8 बुद्धिमत्ताएं देखी यहाँ पर। भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक, संगीतीय, अंतर व्यक्तिगत एंड प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। इसमें से कौन सी ये बुद्धिमत्ता है? सर लैंग्वेज मतलब भाषा का जो आ रहा है वो ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, भाषाई बुद्धिमत्ता है। भाषाई बुद्धिमत्ता है। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? भाषाई बुद्धिमत्ता। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सारी बुद्धिमत्ताओं पर नवाचार पर आधारित जो गतिविधियां है
वो लेकर मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुआ। मैं आपके सामने वो सारी नवाचार पर आधारित जो गतिविधियां हैं एक एक करके प्रस्तुत कर रहा हूं। तो हम पहली देख रही है भाषाई बुद्धिमत्ता। तो भाषाई बुद्धिमत्ता क्या होती है? शब्द को समझना, जानना और उसे प्रयोग करने की क्षमता, यानी भाषाई बुद्धिमत्ता। ये बुद्धिमत्ता लेखक, कवि और वक्ता में अधिक पाई जाती है, जिसके पास ये भाषाई बुद्धिमत्ता होती है, शब्द को जानना, पहचानना। अब देखिए, इस पर आधारित कुछ गतिविधियां हैं। पहली गतिविधि है कल्पना के पंख। एक चित्र या एक चित्रमाला छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसका विकास करना है हमें भाषाई बुद्धिमत्ता का। उनके सामने चित्र हम देंगे, जैसे एक बच्चा जंगल में है, एक रहस्यमयी किताब उसे मिलती है, वह किताब उड़ती है, अचानक उसके हाथ से वो किताब छूट जाती है और वो उड़ने लगती है। तो इस प्रकार के चित्र देख छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। छात्र सोचेगा, कल्पना करेगा और उस पर कहानी लिखेगा। बाद में कहानी मंचन या कहानी का वाचन कक्षा में करवाया जाएगा। कहानी का शीर्षक छात्र खुद चुनेगा। कहानी का जो शीर्षक है उसे छात्र खुद चुनेगा। तो इससे क्या हुआ? कौन कौन से गुणों का विकास हुआ? ये कोई मुझे बता सकता है? कौन कौन से कौशलों का विकास हुआ यहाँ पर? हाँ जी, चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए। सर, कल्पना, भाषा कौशल, कल्पना का विकास हुआ, कल्पनाशीलता का विकास, वाचन, तर, रचनात्मक कौशल, रचनात्मक कौशल, सृजनशीलता का विकास हुआ, वाचन, चिंतन, सृजन, वाचन, चिंतन, सृजन, चिंतनशीलता का विकास हुआ। तो इस लेखन भी प्रकार बहुत की कमेंट आ रहे हैं सर। हाँ हाँ जी, लेखन कौशल वो रचनात्मक लेखन में आ जाएगा, उस कौशल का विकास होगा। कल्पना शक्ति का विकास, ये कल्पना शक्ति का विकास होगा। आकलन सर, आकलन होगा, चित्र को समझेगा, छात्र चित्र को समझेगा, चित्र का अवलोकन करेगा। भावात्मक, रचनात्मक एवं भावात्मक भी है सर कमेंट। वेरी गुड। ये भी देखो छोटी कक्षा के लिए ये बहुत ही बढ़िया नवाचार पर आधारित गतिविधि है। आधा मेरा आधा तेरा, आधा मेरा आधा तेरा, एक की मात्रा वाले शब्द छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने हैं। छात्र उनसे शब्द बनाएगा के, एक अक्षर आगे जोड़ना है, के से मात्रा वाले शब्द। कैसे बनाइए? जैसे मैंने के का बताया, कमेंट में आ गया केला, केले, केला, यस। और बताइए मे का? यस शिक्षकगण। मेला भी हो सकता है, मेला भी हो सकता है, यस। चैट बॉक्स में आइए, मुझे बताइए। मेरा, छोटी कक्षाओं में प्राइमरी शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित है, प्राइमरी शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित है। सर बहुत ज्यादा कमेंट थे। मेरा, मेले, मेले, से केवल भी हो सकता है सर, केवल भी हो सकता है, से तेरा, से सेब भी आ रहे हैं कमेंट में सर। यस मेज, यस, सेवा, सेब, खेल, ख से खेल, यस। तो इस प्रकार की गतिविधि आप कक्षा में करवा सकते हैं। छोटी कक्षाओं में हिंदी में बच्चे रुचि लेंगे, नवाचार होगा। चेला, बच्चों को चेला भी कमेंट में है सर। रेल आएगा, ठेला आएगा, जेल आएगा, चेहरा, तेरा, रेल, ये भी शब्द कुछ आ रहे हैं सर। यस, वेरी गुड जी। तो इस प्रकार की गतिविधियां आप कक्षा में कार्यान्वित कर सकते हैं ताकि हिंदी के प्रति रुचि निर्माण हो, हिंदी का अध्ययन रोचक हो। अब देखिए, एक शब्द से अनेक संसार। आप एक शब्द छात्रों को देंगे, छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जैसे प्रकाश या जल, छाया, आशा, ध्वनि। छात्र उस कविता पर कविता मानसिक स्तर के अनुसार होगा कक्षा में। कोई जिनका हाई एवरेज के बच्चे हैं, प्रतिभाशाली, वो कविता लिखेंगे।
हाँ, एवरेज वाले हैं, सामान्य स्तर के हैं, तो नारा संवाद लिखेंगे, कोई लघु कथा लिखेगा, उस शब्द को मद्देनजर रखते हुए, उस शब्द को केंद्र में रखते हुए उस पर अलग अलग रचना, अलग अलग विधाओं का लेखन कक्षा में होगा। देखो, कोई कविता लिखेगा, कोई नारा, कोई संवाद, कोई लघु कथा, शब्द कोई भी लेगा, प्रकाश, जल, छाया, आशा, ध्वनि, वॉटेवर। फिर उन शब्दों की आप उस पर नवाचार क्या हुआ, कक्षा में आप उसकी शब्द प्रदर्शनी लगाइए, छात्रों की जो कृतियां है चित्रों के साथ प्रदर्शित कीजिए। इससे छात्रों के रचनात्मक लेखन का विकास होगा, भाव अनुभूति का विकास होगा, भावानुभूति का विकास होगा, छात्र संवेदनशील होगा, रचनात्मक कार्य की ओर अग्रसर होगा, विषय विस्तार होगा, विधाओं के बारे में उसका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। कैसे लगी एक्टिविटी, ये गतिविधि कैसे लगी? हाँ जी पूजा मैम, एक बहुत शब्द से अच्छी है। अनेक संसार। हाँ सर, कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। अब देखो, ये गतिविधि देखो थोड़ी हटके कहानी लेखन की है। आप इसमें क्या करेंगे, आप कहानी का एक मध्य वाक्य देंगे। मध्य वाक्य देखो, वहां पर मैंने लिखा है, तभी एक रहस्यमयी आवाज जंगल में गूंज उठी। आपने फलक पर, श्याम पट पर, श्वेत पट पर ये वाक्य लिखा, तभी एक रहस्यमयी आवाज जंगल में गूंज उठी। और छात्रों के समक्ष आप प्रश्नवाचक शब्द देंगे, कौन, क्या, क्यों, किस लिए, कहां, कब, कैसे, किसकी आवाज है, छात्र पूछेंगे ना, आवाज कौन लगा रहा है, क्या, वॉट एवर इट इज, जंगल में कौन आया है, किसकी आवाज है, कब आई आवाज। इससे छात्र अपने वाक्य डेवलप करेंगे, स्वयं ही प्रश्न पूछेंगे और दूसरे छात्र उन प्रश्नों का क्या देंगे, जवाब देंगे। इससे क्या होगा? हाँ जी, इससे क्या होगा? चैट बॉक्स में आइए अध्यापकगण। कहानी लेखन सर, कमेंट आ रहे हैं। कहानी लेखन होगा। कैसे होगा कहानी लेखन? कहानी लेखन कैसे होगा? जो ट्रेडिशनल वे से होगा या ट्रांसफॉर्मेशन वे से होगा? नवाचार पर आधारित होगा। कहानी लेखन कैसे होगा? जो पारंपरिक कथा कौशल सर, कुछ कमेंट आ रहा है, कथा कौशल और वाचन कौशल, वाचन कौशल का विकास होगा, और तार्किक क्षमता का रचनात्मक विकास। रचनात्मक विकास होगा। छात्र नए वे से कहानी लिखेगा, हाँ प्रश्न पूछेगा, जिज्ञासा उसमें उत्पन्न होगी, वो प्रश्न पूछेगा कि क्यों, किसकी आवाज है, बराबर है, कब, दिन में आवाज आई या रात में आई, तो कहानी को डेवलप करेगा, संरचना का विकास होगा। कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एजुकेशनल मेथोडोलॉजी में शब्द है कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचना का विकास होगा। बच्चे उस मध्य वाक्य से जुड़े हुए प्रत्येक प्रश्नवाचक शब्द पर आधारित प्रश्न बनाएंगे और उसके उत्तर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी बुद्धिमत्ता की ओर। पढ़िए बहन जरा, क्या लिखा है? पहेली, मैं हूँ हाँ? संख्या और कारण की रानी, हर उलझन में खोजूं कहानी, समीकरण पहेली मेरी पहचान, मेरे बिना बौद्धिकता वीरान, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। यस, बताइए, आइए चैट बॉक्स में आइए। ये कौन सी प्रतिभा है, कौन सी बुद्धिमत्ता है? हाँ जी, जा रहे हैं प्रश्न कौशल, प्रश्न कौशल, प्रश्न कौशल बुद्धिमत्ता है। मैथ्स, मैथ से है, गणितीय है, तार्किक है, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। कौन सी है ये? गणितीय तार्किक। तार्किक। अभी हम भाषा है तो गणितीय का इतना विचार नहीं करेंगे, तार्किक की ओर जाएंगे। हमारे जो कक्षा 9 और कक्षा 10 के जो प्रश्न पत्र हैं वो तार्किक बेस्ड है, अभिकथन, कारण, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एजर्शन, रीजनिंग। तो तार्किक कौशल का हम विकास की ओर अग्रसर होंगे। देखिए, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, तर्क और गणित को समझने की क्षमता का विकास। हम फिलहाल तर्क को ही समझ लेते हैं, शायद तो वैज्ञानिक और गणितज्ञों में होती है।
देखो, तार्किकता का विकास, लॉजिकल सेंस, कैसे होगा ये विकास? तो उस पर आधारित कुछ नवाचार पर आधारित कुछ गतिविधियां हैं। देखिए आपके सामने, अभी अभी देखो, बच्चा लॉजिकली सोचेगा। आप भी शिक्षक हैं, आप भी लॉजिकली सोचेंगे। देखो, अनुस्वार की पहेली में लेकर आया हूं छोटी कक्षाओं में। यहाँ पर प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापिकाएं यहाँ पर उपस्थित है, उनके लिए ये बहुत ही रोचक गतिविधि है। हाँ जी, देखो अनुस्वार की पहेली कैसे है, देखो हटके। तो ट्रेडिशनल वे से पढ़ाते हैं बच्चों को, अंगूठी, मंद, लाइक दिस हम पढ़ाते हैं, नंदा, नंदादीप। नहीं, वैसे नहीं पढ़ाएंगे, कुछ अलग ढंग से। देखिए क्या है अनुस्वार की पहेली, क्या कह रही है? पहला क्या लिखा है बहन, पढ़िए, पहला क्या है? राजा का विलोम है। हाँ, राजा का विलोम है। क्या सर आएगा कमेंट राजा भी का आ विलोम? गए, रानी। कमेंट रानी, ऑलरेडी आ गए, रानी। रानी या रंग, सर दोनों आए थे एक्चुअली। दोनों आएंगे, लिंग में भी आते हैं, लेकिन भी हम अनुस्वार की पहेली देख रहे हैं तो किसको ले? सर अनुस्वार के हिसाब से हम रंग लेंगे सर। रंग लेंगे, यस। राजा का विलोम है रंग। हाँ बिच्छू बर मारते हैं, क्या कहते हैं उसे? बिच्छू बर मारते हैं। सर, उसको डंक, कमेंट में भी डंक आया। यस, हाँ डंक। लिखिए लिखिए, सभी अध्यापक लिखेंगे। मंदिरों में बजते हैं। घंटा। अब घंटा भी है, और भगवान कृष्ण ने भी बजाया था युद्ध के समय, युद्ध शुरू होने से पहले। शंख। शंख, यस। आगे लिखिए मोर लिखिए, मोर भी के, सुंदर देखो आप होते सोच रहे हैं। हैं कि तार्किक बुद्धि का विकास हो रहा है, सोच रहे हैं, बच्चा भी इसी प्रकार सोचेगा। देखो, मोर के सुंदर होते हैं। पंख। कुछ कमेंट बच्चे में माँ को कहते हैं। माँ। माँ, माँ को कहते हैं। माँ, माँ के ऊपर तो अनुनासिक आ गया। अम्मा। कमेंट में आ रहा है सर। अम्मा में बिंदी नहीं आती है ना। अम्बा। अम्बा या अम्ब, अम्बा या अम्ब कहते हैं ना। जी। और अच्छे लोगों को रखना, संग। लिख रहे कोई चैट बॉक्स में? अच्छे लोगों को रखना। संग का ज्यादातर संग, कमेंट आ रहा है संग, सर। संग। संग। सरस्वती जी का वाहन है हंस। हंस। कमेंट हंस। इंद्रधनुष्य में होते हैं, इंद्रधनुष्य में होते हैं। रंग। रंग, जनवरी में पड़ती है। ठंड सर। गर्मियों में स्कूल हो जाते हैं बंद। बंद। तो इस प्रकार देखो, तार्किक कौशल का विकास होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा। छात्र जो क्या करेगा, छात्र जो समस्या है, समस्याओं को तार्किक रूप से सोचने की और वो अग्रसर होगा, प्रवृत्त होगा। तो देखो, इससे ये अनुस्वार की पहेली है, इसमें आपने सोचा, तर्क लगाया। अब देखिए, ढूंढो ढूंढो, नीचे लिखे वाक्यों में से रंगों के नाम पता कीजिए। देखो, तार्किक कौशल का विकास। अब आपको रंगों के नाम ढूंढने हैं, जैसे दिशा के नाम, सब्जियों के नाम। इस प्रकार के वाक्य देकर आप तार्किक कौशल का विकास कर सकते हैं बच्चों को। 9-10 में बच्चे विकथन कारक के प्रश्न करने वाले हैं सीबीएसई में। तो इसकी जो बेसिक है, सामान्य से कठिन की ओर, तो ये सामान्य जो थिंग है, सूत्र है, ये प्राइमरी कक्षाओं में होना चाहिए। तो देखो, रंगों के नाम ढूंढिए। अजय और विजय का लाला के साथ समझौता हो गया। कौन सा रंग है? देखो, किसी एक रंग का नाम आया है, लिखिए चैट बॉक्स में। सर कमेंट आ रहा है लाल। लाला नहीं, लाला है तो लाल नहीं आएगा, चेंज नहीं करना है। कोई किसी को जोड़ दीजिए, आपस में जोड़ सकते हैं। अजय और विजय का, सर कमेंट आ रहा है काला भी। काला, काला, काला आएगा, यस। मुन्नी लाखन के साथ कानपुर में मेला देखने गई। नीला। नीला। आज सुबह दिल्ली में बहुत ज्यादा कोहरा था। हरा। हरा। सारे सेब खा कीर्ति मुंबई चली गई। सारे सेब खा कीर्ति मुंबई चली गई। खाकी। काकी। शंभू राम के साथ केरल चला गया।
खाकी कमेंट आ रहे हैं सर, इस पे बाकी भूरा आया पूरा। भूरा। तो देखो तार्किक कौशल का विकास हो रहा है, छात्रों के तार्किक कौशल का विकास हो रहा है, समस्या समाधान हो रहा है, छात्र जटिल समस्याओं का समाधान चरणबद्ध ढंग से करना सीख जाते हैं। पहली देखो क्या है, एक अक्षर और मात्रा से शब्द निर्माण। देखो बच्चा सोचेगा एक अक्षर, मात्रा एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। तो देखो माता जननी, जन्म देने वाली, क्या आएगा शब्द? ज्वाला को कहते हैं, लपट या ज्वाला को कहते हैं आग। कमेंट आ रहे हैं सर। एक अक्षर एक अक्षर एक अक्षर। लव। लो। पृथ्वी को कहते हैं भू। हिंदू धर्म का मूल मंत्र ओम। ओम। गरम हवा। लू। कमेंट्स आ रहे, कोई कमेंट्स आ रहे? सर कमेंट के ही है, मैं बस पढ़ रही हूँ। कमेंट्स आ रहे, बहुत बहुत खूब है। जी जी सर। गरम हवा, लू। चार का आधा, चार का आधा। दो आ रहे हैं सर, कमेंट में एक दो आ अनाज का रहे नाम। हैं। हाँ, एक अनाज का नाम जौ। जो। वेरी गुड, बहुत खूब। आभासी यहाँ पर सारे जो शिक्षक उपस्थित है, प्रभा मैम ने। हार्दिक आभार आपका। अधिकार नहीं, आचरण से शिक्षा दी जाती है। अधिकार नहीं, आचरण से शिक्षा दी जाती है। यही शिक्षक की पहचान है, यही शिक्षक की पहचान है, यह आप सबकी पहचान है। देखो तर्क की जांच करना, तर्कशील कहानी लेकर, लॉजिकल। एक कहानी सुनाई जाती है कक्षा में जिसके अंत में कई तर्क भ्रम होते हैं, लॉजिकल फैलेसी। फैंटासी होती है उसी प्रकार फैलेसी होती है। तो लॉजिकल फैलेसी क्या है? तर्क भ्रम। कि देखो एक राजा जो है हर सुबह सूरज उगने पर अनुष्ठान करता था और मानता था कि उसकी वजह से सूरज उगता है। तर्क विश्लेषण करना है, लॉजिकल, कि क्या ये बात सही है, उचित है ये कथन कि राजा सूरज सुबह उगता था, सूरज उगने पर अनुष्ठान करता था और वो मानता था कि उसकी वजह से सूरज आसमान में आता है। तो क्या ये तर्क उचित है, अनुचित है? वास्तविक सूरज का आसमान में आना ये प्रकृति का नियम है, बराबर है, कुदरत का नियम है। तो ये तर्क विश्लेषण, छात्र इस पर तर्क विश्लेषण करेंगे। इस प्रकार के कथन, अभिकथन छात्रों के समक्ष आप प्रस्तुत कर सकते हैं ग्रेड 6 में, 7 में, 8 में। तो उनके अभिकथन और कथन कारण का विकास हो जाएगा, असर्शन रीजनिंग का। तो बच्चा विश्लेषण करना सीखेगा, आलोचनात्मक सोच की ओर बढ़ेगा, भाषा की समझ उसकी दृढ़ होगी। उसी तरह है लॉजिकल क्विज इन हिंदी। देखो क्या किया यहाँ पर, तो भी सुनिए। बहन जी पढ़िए, बहन पढ़िए। जी सर। भाषीय सूझबूझ प्रश्नोत्तरी गतिविधि भाषा आधारित तर्क प्रश्न जैसे, अगर डॉक्टर को दर्जी कहा जाए, दर्जी को कुम्हार कहा जाए, कुम्हार को डाकिया कहा जाए, डाकियों को हलवाई कहा जाए, हलवाई को ड्राइवर कहा जाए, तो मिठाई बेचने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं मिठाई बेचने वाले को? यस, डॉक्टर को दर्जी, दर्जी को कुम्हार, कुम्हार को डाकिया, डाकिये को हलवाई, हलवाई को ड्राइवर। तो मिठाई बेचने वाले को क्या कहते हैं? सोचेगा बच्चा। देखो तर्क संयोजन, विचार संयोजन का विकास होगा। यस, चैट बॉक्स में आइए। मिठाई बेचने वाले को हलवाई बोलेंगे। यस, देखो छात्रों के मूल्यांकन क्षमता का भी विकास हो रहा है यहाँ पर। वेरी गुड बहन, वेरी गुड। कि तर्क के आधार पर निर्णय लेना और निष्कर्ष तक पहुंचना छात्र के लिए सहज हो जाएगा। यस, और क्या आ रहे हैं कमेंट्स? जी सर, हलवाई, डाकिया, कुम्हार, डॉक्टर, दर्जी, दर्जी। यस यस, वेरी गुड जी, वेरी गुड जी। तो लॉजिकल विचार संयोजन होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपके ग्रेड 9th और 10th में, 8वीं में, 6, 7 में हम अभिकथन कारण पर प्रश्न देते हैं।
जैसे कि एक यहाँ पर दोहा मैंने दिया है, कबीर जी का दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। अभिकथन है, कवि कहता है कि दुनिया में बुराई ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। कवि कहता है कि दुनिया में बुराई ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, कारण क्योंकि सबसे बड़ी बुराई हमारे भीतर होती है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, हम अध्यापकों से भी कई बार गलतियां हो जाती है। जब हम अभिकथन और कारण का क्वेश्चन बनाते हैं, तब उसका लॉजिकल जो सेंस है वो हमें अपने दिमाग में रखकर प्रश्न बनाना है कि अभिकथन और कारण, इनमें पारस्परिक संबंध होना चाहिए। फिर वो दोनों सही हो या दोनों के उत्तर एक सही हो या एक गलत हो, लेकिन उस लॉजिकल सेंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये अभिकथन कारक कारण के प्रश्न पर तैयार करने हैं। हम कई अध्यापकों से ये गलती होती है। तो क्या इसका उत्तर क्या है, कोई बता पाएगा? चैट बॉक्स में आइए। सर कमेंट आ रहे हैं ए आर ए? दोनों सही है, मैम बोल रही है। कौन कह रही है, कौन कह रही है? मैम सर नाम तो नहीं है, रियल मी करके उनका ये दिखा रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड जी, आप निष्ठावान हैं, आप शिक्षा के प्रति, हिंदी के प्रति निष्ठावान हैं, बहुत खूब। सर और बहुत किसी? सारे कमेंट आ रहे हैं ए, रूपाली मैम, सुनीता मैम, उमा, वेरी गुड जी। वनीता आप मैम। बच्चों को सिर्फ अक्षर नहीं सिखाते, आप उनका भविष्य गढ़ते हैं। आप सभी शिक्षक यहाँ पर उपस्थित है, रूबरू है मेरे सामने आभासी मंच पर, मैं धन्य हो गया हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। बोल रही हैं ए एंड बी बोथ आर करेक्ट सर। ए एंड बी दोनों सही है, पर आर नहीं जी, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पहला वाला सही आएगा जी। अब देखो ये क्या है, बहन पढ़िए, किसकी पहेली है ये? नहीं, मैं सुन नहीं रहा हूं, आपको सुन नहीं रहा हूं। आप क्या, किसकी पहेली है, किसकी पहेली है ये? यस यस यस। तो देखो हटके है, देखो हम कक्षा में आमतौर पर बच्चों को शब्द दे देते हैं और बच्चे उत्तर लिखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन ये हटके करनी है तार्किक कौशल के विकास के जरिए। तो लोगों का समूह क्या आएगा? हाँ जी, हाँ, एक पेड़ का नाम, एक पेड़ का नाम। चीड़ खेतों के आसपास होती है, खेतों के आसपास होती है। कमेंट आ रहे हैं मेड, मेड, वेरी गुड। घुमाव को कहते हैं, घुमाव को कहते हैं। नहीं सर कोई कमेंट। घुमाव, मो 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 मोड़, मोड़, यस। घटाव का विलोम है, घटाव का विलोम है, घटाव का विलोम, घटाव का विलोम, घटाव, घटाव। जोड़, जोड़ सर, जोड़। कमेंट आ रहे हैं। शर्त का अर्थ है, शर्त का अर्थ है, शर्त का अर्थ हो। हाँ जी शिक्षक, अध्यापक। होड़ कमेंट आया सर, पुष्पा मैम से, रोहिणी मैम से। एक खेल का नाम, घोंसले को कहते हैं नीड, ऑक्सीजन देते हैं पेड़, ऊन देने वाला जानवर भेड़, शेर की आवाज दहाड़, पर्वत का पर्यायवाची पहाड़। तो देखो यहां से छात्रों के तार्किक कौशल का विकास हो जाएगा, तार्किकता का विकास होगा। समझ में आया? किसी भी जानकारी या तर्क को परखने की आदत छात्र में निर्माण हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। रंगों से बोलूं, रेखा से गाऊं, कल्पना की उड़ान में घर बसाऊं, मानचित्र आकृति चित्र बनाऊं, जो न दिखे वो भी दिखलाऊं, बोलो बोलो मैं कौन हूं? रंगों से बोलूं, रेखा से गाऊं, कल्पना की उड़ान में घर बसाऊं, मानचित्र आकृति चित्र बनाऊं। सर कमेंट आ रहा है नक्शा, नक्शा वो सब क्या है? सही है। कौन सी बुद्धिमत्ता है ये? कौन सी बुद्धिमत्ता है ये? बौद्धिक सर, कमेंट आ रहे हैं बौद्धिक। विजुअल है, दृश्य, दृश्य है, दृश्य, दृश्य है,
देखिए, दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता कौन सी आई है? दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, चित्र और आकारों को समझने की क्षमता कलाकार और इंजीनियरों में अधिक होती है। चित्र वर्णन करते हैं हम। देखिए, अब देखो यहां पर एक प्रश्न है, दृश्य प्रश्नोत्तरी, विजुअल क्वेश्चन आंसर्स। एक चित्र दिखाकर प्रश्न पूछे। देखो, ये कौन सा ब्रिज है, ये कौन सा पुल है, हाल ही में बना भारत में? यस, चैट बॉक्स में आइए। हाँ, सर ये कश्मीर। कश्मीर में चिनाब पुल है। हाँ। कौन सा पुल है ये? चिनाब पुल है। माँ वैष्णो देवी की ओर हम कटरा, कश्मीर से कटरा के जी लिए जी प्रस्थान करते हैं। जी। ये बनाया गया है ना हाल ही में। पुल कितने हिस्सों में बटा हुआ है देखो, कैसे वो दिख रहा है। देखिए, ऑब्जर्वेशन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन है। पुल का किनारा कैसे बना है? सर कीर्ति मैम बोल रही है 14 हिस्सों में 14 बटा हिस्सों हुआ में है बटा सर। हुआ है जी। और रूप और संरचना कैसी है? कैसी है रूप और संरचना? सर राधा मैम अर्ध, बोल रही है आंख। यस यस। पुल का किनारा भी देखो कैसे बना है। तो इससे ऑब्जर्वेशन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन, सूक्ष्म दृष्टि का विकास होगा, छात्रों की निरीक्षण क्षमता का विकास होगा, सूक्ष्म विवरण करना छात्र सीखेंगे। तो इस प्रकार की गतिविधि से हम इस दृश्य विजुअल स्पेशल जो है बुद्धिमत्ता का विकास छात्रों में कर सकते हैं। इस प्रकार के चित्र देखकर, तो आमतौर पर हम के चित्र देते हैं, वही घिसे पीटे चित्र जो है वो उठा कर दे देते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर। तो इस प्रकार के चित्र हमें छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने हैं। देखिए, काल्पनिक दृश्य लेकर छात्रों को कहना है कि आंखें अपनी बंद कर लो और कल्पना कीजिए कि आप हिमालय पर खड़े हैं। कहां पर खड़े हैं? हिमालय पर खड़े हैं, ठंड है वहां पर। तो अनुभव आधारित वर्णनात्मक अनुच्छेद लिखने के लिए कहेंगे। आप उसमें ध्वनि का प्रभाव भी जोड़ सकते हैं। कक्षा में ऑडियो विजुअल की सोर्सेस है तो, टीचिंग एड्स है तो हवा, पक्षी, जल आदि की आवाज, साउंडस्केप दे सकते हैं। तो छात्र सोचेगा, कल्पना की दुनिया की ओर बढ़ेगा, दृश्य शब्दांतरण करेगा। दृश्य शब्दांतरण नया शब्द है, देखो, नई नवाचार पर आधारित गतिविधि है ये। दृश्य शब्दांतरण करेगा कि वो सोचेगा कि मैं हिमालय पर खड़ा हूं, और वो आवाज भी सुनेगा, पक्षियों की, जल की, हवा की। कक्षा में ऑडियो है तो भाव संवेदन होगा, इमोशनल सब्लिमेशन होगा, और छात्र उस समय दृश्य विजुअल इंटेलिजेंस की ओर अग्रसर होगा। तो इस प्रकार की गतिविधियां करवाइए कक्षा में। शब्द चित्र बनाना, एक कविता या अनुच्छेद पढ़कर प्रयुक्त बिंबों और प्रतीकों को चित्रों में बदल देना। जैसे कि सुनहरी किरणें नभ से उतर आई, कोई कविता की पंक्ति है ये। तो सुनहरी किरणें नभ से उतर आई, छात्रों को दृश्य चित्र बनाने के लिए कहना। वो लाइन, वो पंक्ति छात्र पढ़ेंगे कि सुनहरी किरणें किस प्रकार नभ से उतर आई, इसका दृश्य बनाएंगे। पोस्टर प्रदर्शनी होगी, बिंब विधान की समझ होगी कि किस प्रकार कवि ने शब्द का प्रयोग किया है, और दृश्य कल्पना, इसका ज्ञान छात्रों में बढ़ेगा। तो इस प्रकार की गतिविधि से क्या होगा? सृजनात्मकता का विकास होगा। दृश्य देखकर कल्पनाशील उत्तर देने की आदत छात्रों में विकसित होगी। आशा अभिव्यक्ति होगी, आशा अभिव्यक्ति भी होगी। छात्र दृश्य के आधार पर अपनी बात स्पष्ट, सटीक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करेगा। जैसे कि कक्षा 10वीं में कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, महाकवि पंत जी की कविता है, कि उसकी जो चार पांच मुख्य पंक्तियां छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कीजिए कि पावस रे तिथि पर्वत प्रदेश, उड़ गया अचानक लोभूधर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, उठ रहा धुआं जल गया ताल। ऐसी एक एक पंक्ति छात्रों को ग्रुप में दीजिए, दल बनाइए छात्रों के, और उस पर दृश्य पंक्ति चुनेंगे और दृश्य का चित्र बनाएंगे छात्र। छात्र रुई से बादल बना सकते हैं, ऑयल पेपर से जल बना सकते हैं, तो उनसे वृक्ष,
काले रंग से अंबर फटता हुआ दिखा सकते हैं, झरनों में सफेद धागों का प्रयोग कर सकते हैं, और उस चित्र के नीचे उस पंक्ति का भावार्थ लिखने के लिए जरूर कहना। तो ये भाषा से रिलेटेड गतिविधि होगी। ये दृश्य तब का है जब बादल अचानक फट जाते हैं, प्रकृति भयभीत हो जाती है। जिस प्रकार पंक्ति होगी उस प्रकार उसका भावार्थ होगा। तो ये दृश्य विजुअल प्रतिभा का जो विकास छात्रों में होगा। हाँ जी, आगे बढ़ सकता हूं मैं? आपकी राय जानना चाहता हूं मैं सभी की। जरा जी चैट बॉक्स में आइए। ये सारी गतिविधियां आपको कैसे लगी? सर, कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ, सृजनशीलता गीता राधा मैम ने बोला। हाँ। राधा मैम तो स्वयं दूरदर्शी है, जो भविष्य की सोच रखती है। सर बहुत अच्छे आ रहे हैं, आकर्षक, सुपर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये सब आपको कक्षा में करवाना है और आप सब करवा रहे हैं। गुरु का स्पर्श सिर्फ ज्ञान नहीं, गुरु का स्पर्श सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन दर्शन देना है। तो जीवन का दर्शन, वास्तविक जीवन का दर्शन आपको छात्रों को कराना है, और आप कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी दृढ़ निश्चयी शिक्षक है। तो देखो, इससे दृश्य कल्पना का प्रयोग होगा, कविता की समझ होगी, सृजनात्मक सामग्री का उपयोग होगा, प्रस्तुति और भाव अभिव्यक्ति भी बहुत ही सुंदर बनेगी। उसी प्रकार कविता का अवलोकन आप करेंगे कि उस पे जो उसी कविता पर आधारित है, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। तो पर्वत की आकृति कैसी है, उसके चित्र बनाए जाएंगे, छात्र उत्तर लिखेंगे, और इसमें स्टेशन बनाए जाएंगे क्लास में 4 दलों में। एक स्टेशन को नाम दीजिए पर्वत श्रृंखला, एक का नाम दीजिए झरनिया और झाग जो कविता में है, पर्वत प्रदेश में पावस, तालाब और दर्पण का प्रतिबिंब, बादल पंख जैसा दृश्य। हर एक स्टेशन पर जाएंगे और हर एक स्टेशन का अनुभव जानेंगे। तो वो कविता का अध्यापन भी नवाचार से हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं पर मौन रहकर, हाथों से गढ़ता हूं सपने बहकर, नाटक नृत्य स्पर्श है भाषा, मेरे बिना शरीर है निराशा। बोलो बोलो कौन हूं मैं? कौन सी बुद्धिमत्ता है? नाटक नृत्य स्पर्श है भाषा। कौन सी गतिविधि, कौन सी बुद्धिमत्ता है ये? मैं आपको सुन नहीं रहा हूं बहन। आप जी सर, समरीन शेख बोल रहे हैं कि कैन वी गेट दिस पीपीटी सर? हाँ, यस, हम देंगे आपको, जरूर जरूर। अब मुझे पहले बताइए कि कौन सी बुद्धिमत्ता है ये? सुमा मैम बोल रही है संगीत, सुनीता संगीत है ये? बोल रही है रचनात्मक। रचनात्मक संगीत ये बुद्धिमत्ता है? देखिए, जी, देखिए कौन सी बुद्धिमत्ता है ये, पढ़िए कौन सी बुद्धिमत्ता है ये, पढ़िए क्या? शरीर का नियंत्रण और सही क्रिया। शारीरिक काइनेटिक बुद्धिमत्ता। जी सर। शारीरिक काइनेटिक बुद्धिमत्ता, शरीर का नियंत्रण और सही क्रिया खिलाड़ी, नर्तक, कारीगर में होती है। हम कहते हैं कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, कुछ नहीं पढ़ रहा है, कहते हैं, लेकिन वो बच्चा क्रिकेट में, फुटबॉल में माहिर होता है, तो उसके पास ये शारीरिक काइनेटिक बुद्धिमत्ता होती है। तो उसे जानना, परखना हर शिक्षक का कर्तव्य है। तो कैसे करवा सकते हैं? देखो, कहानी, संवाद या पाठ का अभिनय आप कैसे करवा सकते हैं? देखो, हरिहर काका कक्षा 10वीं के शिक्षक यहाँ पर उपस्थित है। कक्षा 10वीं के शिक्षक जरा थम दीजिए, कौन कौन है कक्षा 10वीं से? आप पूजा जी, आप सुनाई नहीं दे रहा है। जी सर, वनीता हाँ। मैम है, शीतल मैम, बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर उपस्थित। तो हरिहर काका, तो इतना बड़ा पाठ हम जब पढ़ाते हैं हरिहर काका, तो उस हरिहर काका को हमें कैसे पढ़ाना चाहिए? तो देखो, यहाँ पर शारीरिक इस गतिविधि का हम किस प्रकार, इस बुद्धिमत्ता का किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं? तो हम कक्षा में अभिनय कर सकते हैं हरिहर काका कहानी का। जैसे, हरिहर काका बोले गुस्से में चिल्ला, मैं खेत हूं क्या जो बाट दे भैया मिला। भतीजा बोला, काका कुछ सोचो। का बोले, पहले रायता पोछो। महंत आया, बोले, काका सुनो बात, जमीन दे दो मिलेगा स्वर्ग साथ। काका हंसे,
बोले मुझे मत बहकाओ, तुम तो रोज हलवा पूरी खाओ, तुम तो रोज हलवा पूरी खाओ। संत निकले जैसे फिल्मी विलेन, गंडासा भाला लिए करे गलत खेले। काका को बांधा, घुसा मुंह में कपड़ा, पर काका लुढ़के पहुंच गए दरवाजे में। वो काका बोले बस बहुत हुआ, अब मैं बन गया चालाक बुढ़वा, रख लो पहरा, लो पुलिस का डंडा, अब नहीं चलने दूंगा धोखा या फंदा। इस प्रकार का अभिनय छात्र कर सकते हैं, संवाद लिख सकते हैं। तो स्वयं निर्मित वेशभूषा होगी, संवाद स्वयं बनेगा, शारीरिक बुद्धिमत्ता का विकास होगा, मौखिक अभिव्यक्ति होगी। कैसे लगी आपको ये गतिविधि? आइए जरा चैट बॉक्स में आइए, आपको ये गतिविधि कैसे लगी? इस प्रकार के आप छोटे छोटे संगीता गीत। मैम बोल रही है वाह सर, संगीता हाँ। मैम बोल रही है बहुत बढ़िया, बहुत खूब धन्यवाद गीता जी, मैम। धन्यवाद जी बहन। रविंद्र सर बहुत खूब, सुप्रभ, ज्योति मैम, यस जय यस सर जी, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, शानदार, शीतल मैम। ओके जी। शिक्षक वो शिल्पकार है जो बच्चों को इंसान और इंसान के योग्य बनाता है। तो आप सभी वो शिक्षक है, शिल्पकार है, शिल्पी है आप सभी। देखो, शब्द अभिनय खेल। एक छात्र किसी हिंदी शब्द को बिना बोले अभिनय करता है। बिल्ली, बिल्ली का अभिनय करेगा, शारीरिक बुद्धिमत्ता का विकास होगा। बिल्ली बिल्ली का अभिनय करेगा, वर्षा का गुस्सा आग बबूला हो जाएगा। बराबर है। तो विषय अनुसार शब्दों का चयन करेंगे। तो इससे विकसित कौशल क्या है कि शब्दार्थ का ज्ञान होगा, सांकेतिक संप्रेषण होगा, हाव भाव के जरिए, अभिनय के जरिए, शारीरिक क्रिया के जरिए सहयोग होगा एक दूसरे का, एक दूसरे के साथ। कहानी से चित्र नाटक, किसी कहानी के मुख्य दृश्य को कोई कहानी पढ़ानी है, रोचक करनी है, कोई पाठ कक्षा में, तो कहानी पहले बच्चों को पढ़ने के लिए कहिए, और कहिए कि कहानी में जो छोटे छोटे प्रसंग जो आए हैं उस पर एक फ्रीज फ्रेम आपको कक्षा में प्रस्तुत करनी है, ग्रुप में फ्रीज फ्रेम। तो छात्र अनुमान लगाएगा, दूसरे छात्र देखेंगे ये दृश्य किस क्षण का है। तो देखो, एक फ्रीज फ्रेम के तौर पर मैंने यहाँ पर एक दिया है कि कहानी से चित्र नाटक। देखिए कि छात्र खड़े हैं, वहां पर एक छात्र एक नीचे बैठा है, कहानी का प्रसंग है, वो फ्रीज फ्रेम में है, दूसरे छात्र पहचानेंगे। तो इससे संप्रेषण का भी विकास होगा, शारीरिक क्रियाओं का विकास होगा, शारीरिक बुद्धिमत्ता का विकास होगा। मुहावरे पर आधारित गतिविधि देखो, शारीरिक है, मुंह लटकाना, टांग अड़ाना, नाक में दम करना, हाथ खड़े कर देना, सिर पर हाथ रख लेना। तो ये शारीरिक बुद्धिमत्ता का विकास होगा इससे। और बिना बोले छात्र अभिनय करेंगे, दूसरे छात्र पहचानेंगे। शब्द से शरीर गतिविधि है, उसी प्रकार से। अब हम आगे बढ़ते हैं पहेली की ओर। मैं वीर शब्दों से, ध्यान दीजिए, पढ़िए बहन, पढ़िए क्या लिखा है। मैं बिन शब्दों के बात करूं, ताल सुरों में रात भरूं, कभी गीत में बहता जाऊं, मन के तारों को सहलाऊं। बोलो बोलो मैं क्या हूं, बोलो बोलो मैं कौन हूं। मैं बिन शब्दों से बात करूं, ताल सुरों में रात, ताल सुर आए हैं, तो कौन सी बुद्धिमत्ता आई है? गीत, ताल, सुर, कौन सी है ये बुद्धिमत्ता? हाँ सर मैसेज बहन, मैं आ आपको रहा सुन है, नहीं रहा हूं। ये कलात्मक प्रस्तुति। संगीतात्मकता है, संगीतात्मकता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। देखिए, संगीत मनीषा और मैम ध्वनि बोल को रही समझ, है संगीतीय। ये संगीत ये है, संगीत और ध्वनि को समझने की क्षमता संगीतकार गायक में होती है। किस प्रकार इस क्षमता का आप विकास करेंगे अपने छात्रों में? तो नवाचार पर आधारित कुछ गतिविधियां है। देखिए, छात्रों को अनुप्रास, यमक, अलंकार वाले पद्य पढ़वाकर उनकी ध्वनि सौंदर्य पर चर्चा करवाइए। उसके बाद में उन पर आधारित कोई रचनात्मक प्रस्तुति देंगे। छोटी छोटी बातों का क्या ठिकाना, कड़ 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 कर कहे कहे कटते रहे, अनुप्रास है। तो भाषा की संगीतात्मक को समझने में छात्रों की मदद मिलेगी, छात्रों को सृजनात्मक सोच बढ़ेगी, भावों की अभिव्यक्ति होगी, छात्रों के भावों की अभिव्यक्ति भी होगी कि इस प्रकार से वाक्य छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाए। अब देखो, ये एक हटके एक्टिविटी है नवाचार पर आधारित। कक्षा में अलग अलग ध्वनियां जैसे वर्षा, घंटी,
रेलगाड़ी, मंदिर की घंटी आदि बजाना है। छात्रों से उन ध्वनियों को केंद्र में रखकर एक लघु कथा तैयार की जाएगी। ध्वनि सुनेंगे, साउंड सुनेंगे। बारिश की टप टप ध्वनि ने राधा को बचपन की याद दिला दी। उदाहरण भी दिया, ऑडियो वहां पर, अपने वीडियो वहां पर लगाया, ऑडियो लगाया। बारिश की टप टप ध्वनि हो रही, बूंदे नीचे आ रही है तो टप 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 आवाज आ रही है। तो ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। श्रवण कौशल और रचनात्मक लेखन में सुधार होगा। छात्रों के श्रवण कौशल और रचनात्मक लेखन में सुधार होगा। शब्दों की ताल, वाचन में लय, रिदम देखो कि छंदबद्ध कविताओं का तालबद्ध वाचन करवाए। मैथिली शरण गुप्त की साकेत से कोई अंश ले लीजिए, उनका वाचन करवाइए। कई ऐसी कविताएं हैं, उनका आप वाचन करवा सकते हैं। जैसे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, उस प्रकार से कोई कविताएं है तो उस आवेश में, उस जोश के साथ कविता कह सकता है छात्र, वाद्य यंत्रों की सहायता से। और स्वर के रंग, मेलोडी बेस्ड क्रिएटिव कंपटीशन देखिए कि किसी एक भाव, जैसे खुशी भाव है, दुख है, आशा है, वीरता है, कविता को लयबद्ध करिए, एक भाव दीजिए। वीर रस की कविता ढोलक के साथ प्रस्तुत कीजिए। ढोलक के साथ वीर रस की कविता प्रस्तुत करने के लिए कहना। श्रृंगार रस की कविता है तो बांसुरी या तानपुरा की ध्वनि के साथ प्रस्तुत करने के लिए छात्रों को कहिए कि जिस प्रकार जैसे भाव है उसी प्रकार का वाद्य छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार की स्वर के रंग प्रतियोगिता का आप आयोजन करवा सकते हैं स्कूल में। आमतौर पर हम दोहा रिसिटेशन करवाते हैं, दोहा वाचन करवाते हैं, कविता वाचन प्रतियोगिता करवाते हैं। थोड़ी नवाचार पर आधारित इस प्रतियोगिता को हम कर सकते हैं कि छात्रों को हम कोई भाव देंगे, खुशी, दुख, आशा, वीरता, उसका चयन करेंगे और जैसा भाव है उसी प्रकार का वाद्य यंत्र चुनेंगे और उस कविता को प्रस्तुत करेंगे। तो ये नवाचार पर आधारित है, मेलोडी बेस्ड क्रिएटिव कंपटीशन। तो पुरानी जो घिसी पिटी जो चली आई प्रतियोगिता है उन पर रोक लगेगी और इस प्रकार की गतिविधियां आगे आएगी तो छात्रों की संगीतीय बुद्धिमत्ता का भी विकास होगा। कैसे लगी आपको यह गतिविधि? बताइए मुझे, चैट बॉक्स में आइए। हाँ पूजा बहन, क्या कह रहे हैं सभी अपने शिक्षक यहाँ पर उपस्थित है? जी सर, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है पिक्चर। मधु मैम बोल रही है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, वो आगे है, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता आगे आएगी। लेकिन सर माया मैम भी प्राकृतिक भी बोल रही है सर। कीर्ति ये बोल रही प्राकृतिक है नहीं आएगी, ये संगीतीय बुद्धिमत्ता है, ये संगीतीय बुद्धिमत्ता है जी। ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। अभी तक प्राकृतिक की ओर हम बढ़े नहीं है। ये म्यूजिकल है कि छात्रों को एक भाव दिया जाएगा, खुशी, दुख, आशा, वीरता। और वीर रस की कविता है तो ढोलक के साथ प्रस्तुत करेंगे। श्रृंगार रस की है तो बांसुरी या तानपुरे के साथ प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, कुछ कमेंट्स है चैट बॉक्स में? कुछ है कमेंट्स? वेरी गुड, बहुत सुंदर। दीपक सर बोल रहे हैं दीपक सर तो बहुत अपने आप में अद्भुत है। आपका हर शब्द किसी जीवन की दिशा तय करता है दीपक सर। आप तो सृजनशील है, प्रेरणादायक है। एक्सीलेंट। यस जी। शीतल मैम एकदम नवीन है। तो ये देखिए कमेंट्स हैं सर। ये सुन सकते हैं क्या? जरा देखिए, सुन सकते हैं तो सुन सकते हैं। सर सुनाई तो नहीं दे रहा है वैसे। हाँ नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है ना इधर, उसका थोड़ा ये हो गया है, इसको रहने दीजिए। तो जैसे कि भाई छात्रों से गतिविधि करवाई थी कि उसमें क्या था, एक छात्र जो है दोहा जो है वो प्रस्तुत कर रहे थे कक्षा में, तो उसका चित्र दिया था। अभी ये देखिए, मैं समूह में राह दिखाऊं, बातों में विश्वास जगाऊं, सुनूं सबकी बोलूं सलीके से, बंधुता लाऊं सच्चे तरीके से, बोलो बोलो कौन हूं मैं समूह में राह दिखाऊं, बातों में विश्वास जगाऊं, सुनूं सबकी बोलूं सलीके से। कौन सी बुद्धिमत्ता है ये? यस, गेस कीजिए। व्यक्तिगत सर, नविता व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत। यस, देखिए, अंतर व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, दूसरों के भावों को समझना, यानी संवेदनशीलता का विकास। बराबर है। जब हम दूसरों के भावों को समझेंगे तो ही संवेदनशीलता का विकास होगा।
यानी अंतर व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता। छात्रों का समूह में विभाजन करेंगे, संवाद लेखन कार्य देंगे छात्रों के समक्ष और संवाद लेखन प्रस्तुति की जाएगी। इस पर मिश्रित कहानी दे सकते हैं छात्रों के समक्ष। हर छात्र एक अनुच्छेद लिखेंगे, समूह मिलकर पूरी कहानी लिखेगा अलग अलग पैराग्राफ में। शब्द सभा, जैसे एक विषय दिया, ईमानदारी पर समूह में शब्द विचार संग्रह करते हैं, छात्र पोस्टर बनाते हैं। ये देखिए, ये जरा हटके है। साहित्यिक चर्चा मंडली, कक्षा को समूह में बांटना है, साहित्यिक रचना, कविता, कहानी या उपन्यास चर्चा कराए। हर छात्रों को एक विशेष भूमिका दे, जैसे एक विचारों को प्रस्तुत करने वाला हो होस्ट, प्रश्नकर्ता हो, क्वेश्चन पूछने वाला, निष्कर्ष निकालने वाला। इस प्रकार के रोल पात्र छात्रों को दीजिए, भूमिकाएं दीजिए और चर्चा कीजिए बाज और सांप इस पाठ पर। कक्षा 8 में लेसन है ना, कक्षा 7 या 8 में लेसन है बाज और सांप। तो दूसरों के विचार सुनने, सम्मान करने का अभ्यास होगा, टीम वर्क होगा, संवाद कौशल का विकास होगा। तो इस प्रकार लिटरेचर सर्कल जो है, ग्रुप डिस्कशन भी कक्षा में आप करवा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी। देखो, छात्रों को एक सामाजिक या नैतिक समस्या वाली कहानी दी जाए, उन्हें समूह में उसका समाधान खोजने के लिए कहे। जैसे लाख की चूड़िया, सामाजिक सुधारों के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि बेरोजगार जो है, मशीनी युग ने लोगों के हाथ छीन लिए, तो छात्र उस पर चर्चा करेंगे। सहकार्य और नेतृत्व गुणों का विकास होगा, सामाजिक चेतना का भान, उत्तरदायित्व की भावना छात्रों में विकसित होगी। कक्षा संसद बनाइए आप एक, नवाचार पर आधारित है। देखो, अंतर व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता के लिए क्लास पार्लियामेंट, कक्षा में संसद का सृजन करें जहां छात्र विविध भूमिकाएं निभाए। एक मंत्री बने, एक प्रतिपक्ष का नेता बने, एक अध्यक्ष बने। देखिए, वे शिक्षा या साहित्यिक मुद्दों पर हिंदी में बहस करें, जैसे क्या मोबाइल शिक्षा का भविष्य है, मंत्री है, प्रतिपक्ष नेता है, अध्यक्ष है, सब है। तर्क वितर्क होगा, सार्वजनिक बोलना सीखेंगे, नेतृत्व कौशल में वृद्धि होगी, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की क्षमता छात्रों में विकसित होगी। हाँ जी, कैसे लगी आपको गतिविधियां? आइए जरा चैट बॉक्स में। सर, वनीता मैम बोल रही हैं कक्षा 8 में है। हाँ, और रीता सोनी मैम बोल रही हैं कि सामवेद सामवाद सर। हाँ। रोहिणी मैम बहुत सुंदर, स्मिता मैम बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, अंजू मैम अति रोचक, शीतल मैम रचनात्मक, विद्या मैम बहुत सुंदर। सर, बहुत अच्छे कमेंट्स। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आपका हर प्रयास किसी छात्र की उड़ान की नींव है। धन्यवाद जी। कहानी को नया मोड़ देना। देखो, जैसे दो बैलों की कथा कहानी है, यदि बैल मालिक के पास वापस न जाते तो क्या होता। अंतर व्यक्तिगत, एक दूसरे के साथ चर्चा करेगा, सहानुभूति और रचनात्मकता का विकास होगा, समूह चर्चा के माध्यम से बात आगे बढ़ेगी। अब आगे देखो, मुझे न कोई बाहर देखे, मैं ही खुद को रोज परखे, मौन में मेरी बातें गूंजे, भीतर की दुनिया में मैं झूमे, बोलो बोलो कौन हूं मैं। कौन सी बुद्धिमत्ता है ये? भीतर की दुनिया में मैं झूमे, मौन में मेरी बातें गूंजे, अपने आप से संबंधित है। कौन सी है ये बुद्धिमत्ता? यस, शीतल मैम ने भेजा है। अंतः व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता है, स्वयं के विचार और भाव समझने की क्षमता, आत्मनिरीक्षण और आत्म विकास, इंट्रोस्पेक्शन। देखिए, भावों की भाषा कैसे होगा इसका, इस प्रतिभा का, इस बुद्धिमत्ता का विकास। बच्चों को कोई कहानी सुनाए, अकबर बीरबल पंचतंत्र की, उसमें से किसी पात्र के मनोभाव को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कहे। कोई भी पात्र हो, अकबर हो, बीरबल हो, या कोई भी हो, तेनालीरामा हो, अभिनय के माध्यम से उसके मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए कहिए कि उस पात्र में छात्र जाएगा, छात्र उस पात्र में चला जाएगा और
स्वयं में अनुभूति लाएगा कि वो स्वयं अकबर है, बीरबल है, और उसको मनोभावों को अभिव्यक्ति देगा। आत्म अनुभूति और आत्माभिव्यक्ति क्षमता का विकास होगा, आत्मा अभिव्यक्ति का क्षमता का विकास होगा। मन की बात, बच्चों को कहा जाए कि वे किसी अनुभव, सपना, डर, खुशी, दुख पर एक छोटी कविता लिखे या अनुच्छेद लिखे। आत्मविमर्श होगा, संवेदनात्मक अभिव्यक्ति का विकास होगा। पढ़िए जरा बहन, क्या लिखा है? मन का चित्र गतिविधि विवरण। बच्चों को कहा जाए कि वे हिंदी कविता पढ़कर जो भावनाएं महसूस करते हैं उन्हें रंगों के माध्यम से चित्रित करें। चित्र के पीछे वे एक पंक्ति में अपनी भावना लिखें। उदाहरण, कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लक्ष्य, अपनी भीतरी भावना को समझना और व्यक्त करना। क्या होगा इससे, बताइए मुझे। आइए चैट बॉक्स में, किस प्रकार आप करवा सकते हैं? रंगों के माध्यम से चित्रित करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। प्रियंका मैम बोल रही है लेखन चित्रण। हाँ, राधा मैम बोल रही हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हाँ। जी सर। आत्मचिंतन की क्षमता का विकास होगा। छात्र अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का विश्लेषण करना सीखेगा। करेक्ट है। भावनात्मक संतुलन होगा। बिना बाहरी दबाव के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा छात्र को मिलेगी। तनाव और संघर्ष की स्थिति में भी संयमित रहना सीखेगा। पत्र मेरे आपसे, सेल्फ लेटर। बच्चों से कहा जाए कि वे स्वयं को एक पत्र लिखे, अपने आप को, जिसमें वे अपनी अच्छाइयां लिखे, बुराइयां लिखे, लक्ष्य के बारे में लिखे, स्वयं के साथ संवाद कीजिए। देखो कई ऐसे महापुरुष होके गए बड़े बड़े, जो अपने आप से बात करते थे। पता है, जो अपने आप से बात करते थे, और हमें लगता है कि वो पागल है, हम कहते हैं कि वे मूर्ख है। लेकिन कई लोग जो अपने आप से बात करते हैं, तो उनमें जो अंत बुद्धिमत्ता होती है अपने आप को जानने की, स्वयं के साथ संवाद करने की। बच्चों को विश्राम की स्थिति में बिठाइए। हिंदी में कुछ भावनाओं के शब्द दे, जैसे शांति, प्रेम, डर, और उनसे कहे कि आंख बंद करके उस भावना को महसूस करें। शांति दो, तो शांति के साथ, उस मूल्य के साथ, उस भावना के साथ वे इंद्रस हो जाए, एकाग्र हो जाए। प्रेम, डर, उस भावना को महसूस करें और अंत में उसे शब्दों में व्यक्त करें। तो इमोशन मेडिटेशन विथ हिंदी वर्ड्स आप करवा सकते हैं कक्षा में। अब देखो, लास्ट हमारी बुद्धिमत्ता है, पेड़ पक्षी पत्ते है साथी, वर्षा ऋतु है मेरी खाती, प्रकृति से है मेरा रिश्ता पुराना, हर फूल हर पर्वत मुझे है जाना, बोलो बोलो मैं कौन हूं। कौन सी प्रतिभा है ये? हाँ जी, सर प्रकृति से। प्राकृतिक, शीतल हाँ मैम बोलिए। बोल रही है प्राकृतिक। प्रियंका मैम क्रिएटिव। हाँ, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है ये, जी सर। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है ये। प्रकृति के तत्वों को समझने की क्षमता कृषक और पर्यावरणविद में पाई जाती है, जो एनवायरनिस्ट होते हैं। प्रकृति के प्रति प्रेम एवं लगाव निर्माण करना, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता। वर्dsworth ने कहा है, टैगोर भी लिखते हैं कि प्रकृति में ही मुझे ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो देखो, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का विकास कैसे करवाएंगे हम? हिंदी भाषा की समृद्धि और प्राकृतिक प्रतिभा से जुड़ाव। तो देखो, कुछ फूलों से संबंधित मुहावरे दे दिए जाए, कुछ पशु पक्षियों से संबंधित मुहावरे, कुछ मौसम से संबंधित, कुछ प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित मुहावरे। देखो, फूल सा चेहरा, गधे को घोड़ा बनाना, आसमान के तारे तोड़ना, पत्थर की लकीर होना। तो ये सारे मुहावरे, इस प्रकार के मुहावरे, देखो, फूल, पशु पक्षी, मौसम और प्राकृतिक वस्तुएं। कैसे करवाए गतिविधि? छात्रों को 4 श्रेणियों में बांटे, फूल, पशु पक्षी, मौसम और प्राकृतिक वस्तुएं। हर समूह को 5-10 मुहावरे खोजने और उनका अर्थ प्रयोग लिखने के लिए कहे। देखो, ये चारों जो दल है, तट के नाम जो है, दलों के नाम, फूल, पशु पक्षी, मौसम, प्राकृतिक वस्तुएं, ये सारे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है। पोस्टर बनवाइए,
उससे संबंधित मुहावरे छात्र खोजेंगे इंटरनेट की सहायता से, पुस्तकालय से। तो मुहावरे कौन बोले नामक खेल करवाइए, जिसमें एक छात्र मुहावरे बोलेगा, बाकी अर्थ बताएगा। और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का यदि सच्चे दिल से आपको छात्रों में विकास करना है ना, मैं तो कहता हूं हिंदी में सुमित्रानंदन पंत जी की जो कविता है, वो कविताएं उनके सामने प्रस्तुत कीजिए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो कार्य अंग्रेजी में किया, वही कार्य हिंदी में महाकवि पंत जी ने किया है। उस कविता का वाचन करवाइए। तो ये सारी थी प्राकृतिक, ये सारी थी 8 के 8 बुद्धिमत्ताएं। अब मेरा आपके सामने एक केस स्टडी का प्रश्न है, बहन पढ़ेगी, सभी शिक्षक सुनेंगे। जी सर। पढ़िए। कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण कक्षा में संज्ञा के भेद पढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षिका ने कक्षा में देखा कि कुछ छात्र परिभाषाएं जल्दी याद कर लेते हैं और मौखिक उत्तर देने में तेज हैं। कुछ छात्र रंगीन चार्ट बनाकर अलग अलग भेदों को चित्रों के माध्यम से समझाते हैं। कुछ छात्र उदाहरणों को गीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ अभिनय के जरिए व्यक्ति, स्थान, वस्तु को प्रदर्शित करते हैं। वहीं कुछ छात्र समूह चर्चा द्वारा एक दूसरे को समझाते हैं। देखिए, कुछ छात्र परिभाषाएं याद करते हैं, कुछ रंगीन चार्ट बनाते हैं, कुछ छात्र उदाहरणों के गीत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कुछ व्यक्ति, स्थान, वस्तु को प्रदर्शित करते हैं। वही कुछ छात्र समूह चर्चा द्वारा एक दूसरे को समझाते हैं। संज्ञा भेद आप पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी? टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी, मैं आपसे सब सवाल कर रहा हूं। आप चैट बॉक्स के माध्यम से आइए कि आप किन किन मल्टीपल इंटेलिजेंस की पहचान कर सकते हैं। एज अ टीचर आप किन किन मल्टीपल इंटेलिजेंस की पहचान छात्रों में कर सकती है, बताइए मुझे। सर, रूपाली मैम बोल रही हैं कि स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हुई है, लेकिन हमें तो दिख रही है। हाँ, पीपीटी तो शेयर हुई है, सभी से पूछिए, सभी के साथ पीपीटी तो शेयर है ना? हाँ, सभी से शेयर है। Yeah, जी we can see, we can see. हाँ, इवन आई कैन सी सर, बट मैम ने कमेंट किया। हाँ, यस बताइए। मैम अंजू दुबे मैम बोल रही हैं भाषी है। भाषीय है, भाषाई, और क्या क्या हो सकता है? टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या यूज करेंगे आप इसमें? ऑल 4 कौशल सर। यस, बहुत खूब। तिवारी मैम ने बोला। रोहिणी तिवारी मैम ने बोला प्राकृतिक है। हाँ, प्रिया कुमारी मैम बोल रही हैं लिंग्विस्टिक। यस, अंजू दुबे मैम दृश्य। ये दृश्य का भी विकास हो रहा है, दृश्य प्रतिभा, बहुत खूब। जी सर, ऐसे कमेंट यस, है। आप नवोन्मेषी शिक्षक है, प्रशंसनीय है, आप संवेदनशील है, समझदार है, आप किताबें नहीं जिंदगियां पढ़ाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। वनीता मैम बोल रही हैं संगीतीय है सर। यस, तो शिक्षक के लिए महत्व है विविध बुद्धिमत्ताओं को पहचाने, शिक्षण विधियों को अनुकूलित करें, बच्चों के आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता को बढ़ाइए। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी गतिविधि हो, किसी भी प्रकार का नवाचार हो, हिंदी के प्रति रुचि छात्रों में निर्माण कीजिए। हिंदी को रोचक बनाइए। हिंदी विश्व की सरल भाषा, जो चाहे जैसे बोल ले, भाव विचार संस्कार संवेदना सब में हिंदी तोल ले। तो हिंदी को रोचक बनाइए। हर बच्चा प्रतिभाशाली है, हर शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हर एक आभासी शिक्षक प्रतिभाशाली है। सही पहचान से पूरी क्षमता विकसित होती है। शिक्षा का उद्देश्य समग्र विकास है। आपके कुछ प्रश्न? Yes, Pooja ma'am, you can take up questions. So they can raise their hands, we can unmute, or they can put it in the chat box. Yes, Pooja, you're unmute. You're on mute. You have to unmute. Miss Manisha Lakhare. जी सर, हम स्टार्ट करते हैं।
मनीषा हाँ, जी क्या बोलिए। है? हाँ जी। क्या सुन सकते हैं? जी मैम, जी मैम। आपका ये सब्जेक्ट आज आपने जो भी सिखाया बहुत अच्छे से सिखाया और इसका लाभ हमें होगा 101 होगा। लेकिन मुझे एक प्रश्न है कि ये हम करते हैं मतलब सिखाते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जो बच्चे हैं, जो कुछ कुछ बच्चे लिखते ही नहीं है, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए? नहीं नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं, नहीं, बच्चों में पहले रुचि निर्माण करनी है। हाँ, और तो वो वो और करें। रुचि निर्माण तो प्राइमरी लेवल से होगी, कक्षा 1 से वो होगी। वर्टिकल भाषा का जो वर्टिकल लैंग्वेज प्रोग्रेशन जो है वो ग्रेड 1 से शुरू हो जाता है। और यदि छात्रों को रुचि नहीं है, यदि छात्रों के पास ज्ञान ही नहीं है, श्रवण, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का ज्ञान ही नहीं है, तो यदि वो बच्चा कक्षा 8 का है तो 7वीं तक का उसे ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए अलग से आप पाठ्यक्रम तैयार कीजिए। उस छात्र के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार कीजिए। कक्षा 9 में हो सकता है वो दूसरी भाषा की ओर बढ़ेगा। धन्यवाद सर। और कोई है? माया मैम पूछ रही हैं कैसे हम साउथ इंडियन बच्चों को पढ़ाएं हिंदी में। मैं पिछले 10 वर्ष से मैंने गल्फ में साउथ इंडियन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, केरला के बच्चों को। मलयालम मैंने पूरी सीख ली है। मैं उनके साथ रहकर पूरी मलयालम मुझे आती है, मैं भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ। तो उनको पढ़ाने के लिए आपको अंग्रेजी का तो सहारा लेना ही है। तो ये एक्टिविटी जो है, नवाचार पर आधारित गतिविधियां है, वो सारी आपको कार्यान्वित करनी होगी। आपको अपने आप को उन बच्चों के हिसाब से तैयार करना होगा, मोल्ड करना होगा। जब बच्चा आपको जानेगा, आपसे प्रेम रखेगा, अपनत्व रखेगा, तो अपने आप वो हिंदी भी सीखेगा। तो इस प्रकार की जो अलग अलग गतिविधियां हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथोडोलॉजी है, उसे आपको अपनाना है। अलग अलग नवाचार पर आधारित है, लयबद्ध है, नवाचार नवाचार लयबद्ध नवाचार है, उसे आपको अपनाना है। सामान्य से कठिन की ओर आपको बढ़ना है। यदि वो बच्चा, आप कौन सी कक्षा की शिक्षिका है मैम? आप कौन सी, ये मैम कौन सी कक्षा में पढ़ाती है आप? हाँ जी मैम। मिलिंद जी, हाँ what happens is, Hindi में सीखना है ना? हाँ What अ, happens in South India, Hindi is being translated and taught. हाँ। Translation नहीं, वो method शुरू we are में, using. शुरू शुरू में शुरू में शुरू की Yeah. कक्षाओं में, तो शुरू की कक्षाओं में अंग्रेजी का सहारा तो लेना ही है, थोड़ी थोड़ा बहुत। लेकिन आगे चलकर बच्चे अपने आप जानने जाते हैं, समझते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। सर माया मैम कक्षा 4 और 5 को पढ़ाती हैं। हाँ, कक्षा 4 और 5 को आप पढ़ा रही है, तो आप लिसनिंग गतिविधियां है, ऑडियो है, वीडियो है हिंदी में, आप उनके सामने प्रस्तुत कर सकती है। बच्चा वो हिंदी सुनेगा, जितना सुनेगा तो उतनी उसकी जो वोकैबुलरी है वो इनहांस होगी, उसकी वोकैबुलरी होगी, बढ़ेगी, और वो भाषा की ओर अग्रसर होगा। छोटे छोटे वाक्य उनसे आप करवाइए, नवाचार पर आधारित ये गतिविधियां हैं, उनसे आप इससे रूबरू करवाइए, ताकि हिंदी के प्रति रोचकता, रुचि बढ़े। सर रोहिणी मैम बोल रही हैं कि टफ पेपर आता है तो सर बच्चे हिंदी सीखने से दूर हो रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं हिंदी सीखने में। संस्कृत की तरह ही थोड़ा आसान पेपर से, ताकि बच्चे रुचि ला सकें हिंदी तो सीखने ये के अभी लिए। ये बोर्ड का मापदंड है, ये बोर्ड का मापदंड है, ये बोर्ड ने जो बनाया है। लेकिन फिर भी जो हमारे सामने चैलेंज है उसे हमें स्वीकारना है, एक्सेप्ट करना है। बच्चों को हिंदी की ओर मोड़ना है हमें, कि वो भारतीय भाषा सीखे, चाहे संस्कृत सीखे, हिंदी सीखे, मराठी सीखे, गुजराती सीखे, जिस जिस स्टेट में जो जो भाषा है, तो उसको हमें लाना है। तो इसलिए बच्चों में हमें शुरू से ही, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से ही बच्चों को उसी हिसाब से हमें डालना है। उसी हिसाब से हमें उनका जो बेस है, कॉन्सेप्ट जो है, संकल्पनाएं जो है, वो उनकी हमें मजबूत करनी है। सर और परवीना मैम बोल रही हैं कोई ग्रुप है क्या आपसे जुड़ने का? मुझसे जुड़ने का अपना सीबीएसई सहोदय, भारत सहोदय का ग्रुप है, आप उससे मुझसे जुड़ सकती है। आपके जो सवाल है उस ग्रुप पर आ सकते हैं, डॉक्टर सलाम जी वहां पर है। Yeah, सर I will मोस्ट ऑफ send द my क्वेश्चंस WhatsApp यही हैं। number. I will व्हाट्सएप send my नंबर, WhatsApp number. यस यस सर विल सेंड व्हाट्सएप नंबर। हाँ सर जी। ज्यादा
सर प्रश्न यही आ रहे हैं कि साउथ इंडियन के जो बच्चे हैं उनको हिंदी पढ़ाना। देखो, मेरा जो अनुभव है साउथ इंडियन के बच्चों का, मेरा जो अनुभव है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, लास्ट 10 ईयर, 5 years इन मस्कत एंड 5 years इन किंगडम ऑफ बहरेन, तो वहां पर सारे 99% साउथ इंडियन स्टूडेंट्स है। केरला से है, चेन्नई से, तमिलनाडु से है, हैदराबाद से है, 99% स्टूडेंट्स। तो उनको जो पढ़ा वहां पर, मैंने कक्षा ग्रेड 1 to 5 का मैं जूनियर एचओडी भी था, वहां पर भी मैंने देखा है कि छोटी कक्षाओं में जब आप जाते हैं, जब संज्ञा पढ़ाते हैं 9, तो आपको उसे इंग्लिश के साथ जोड़ना ही है छोटी कक्षाओं में। प्रीफिक्स सफिक्स, स्मॉल कक्षा है 3rd 4th 5th की, तो उन्हें संज्ञा नाउन वो बताना ही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, वहां पर आपको अंग्रेजी का सहारा लेना है और थोड़ा आपको उसमें थोड़ा सहारा लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लिश में बताकर आपको हिंदी की ओर आना है और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको। छात्रों के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको वृद्धिगत करने हैं, और साथ ही में जो अलग अलग नवाचार पर आधारित गतिविधियां है, जैसे मैंने अभी अनुस्वार नी की पहेली करवाई, अनुस्वार की पहेली करवाई, तो इस प्रकार रोचक बनाइए, एक्टिविटी बेस्ड बनाइए एजुकेशन को, रोल प्ले मेथड लाइए। कोई कहानी पढ़ा रही तो हाथ में किताब लेकर एक था राजा एक थी रानी, नहीं, ये सारी गतिविधियां नहीं चलेगी, ट्रेडिशनल परंपरा नहीं चलेगी। आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, नया कुछ लाइए, नवाचार लाइए, बच्चों के ग्रुप बनाइए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को लाइए। जैसे अनसीन पैसेज हम पढ़ाते हैं, आमतौर पर ट्रेडिशनल क्या करते हैं, वी आर गिविंग द अनसीन पैसेज छात्रों के समक्ष वर्कशीट, और बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं। नो, हम उसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग लाइए, छात्रों के ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाकर एक ग्रुप में छात्र उस अनसीन पैसेज को पढ़ेगा, दूसरा प्रश्न पूछेगा, तीसरा उसका कंक्लूजन निकालेगा, चौथा उससे किसे डेली लाइफ से जोड़ सकता है क्या, इस पर चर्चा करेगा। बाद में प्रश्न छात्रों के समक्ष दीजिए, बाद में प्रश्न छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, तब छात्र अपने आप उसमें रुचि लेने लगेगा। सर मनीषा मैम हैंड रेस कर रही हैं। मनीषा मैम, नमस्ते जी मनीषा मैम, आपका समर्थन। हाँ जी बोलिए। मैम चंद्ररेखा, मिस चंद्ररेखा, यू कैन स्पीक, शी हैज जी ऑलरेडी सर। रेज्ड। या सर मैं चंद्ररेखा, मेरा सवाल ये है कि सर 10वीं के बच्चों को मुहावरे कैसे याद करवाएं, क्योंकि इतने मुहावरे हैं, बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें कितना पढ़ना है, हम कहाँ कहाँ से पढ़े, तो सर उनको कैसे याद करवाया जाए मुहावरे। टोटल कुल मिलाकर 90 मुहावरे हैं। लास्ट जी मेरा 6 और 7 years का जो एक्सपीरियंस है जी सीबीएसई के साथ, तो उसी मुहावरे में से ही मुहावरे छात्रों को आते हैं, जो 90 मुहावरे हैं कक्षा तो 9 सर और कक्षा 10 के। हाँ जी, सर वो मुहावरे 90 मुहावरे हमें कहाँ से मिलेंगे, आप शेयर कर सकते हैं वो मैं मुहावरे। शेयर कर दूंगा, मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। तो उसी में अच्छा से ही अभी तक आ रहे हैं, और कोई कुछ मुहावरे ऐसे हैं कि इनकी आने की संभावना है, तो बार बार वही आ रहे हैं, बार बार वही अच्छा भी आ रहे हैं। तो जो 90 मुहावरे, तो हम क्या करते हैं मालूम है, हमने क्या किया था, वो जो 90 मुहावरे है ना, कक्षा जी 9 में हमने मुहावरे टॉपिक रखा, और हम्म। कक्षा 9 में हमने 50 मुहावरे कवर अप कर लिए पूरे अच्छा साल में, 25 जी 15 15 करके कक्षा 9 में 50 मुहावरे कवर अप कर लिए, बचे जी 40, वो बाद में 40 ले लिए उस 50 के साथ, हाँ और 50 की पुनरावृत्ति करवाई। तो इस प्रकार जी आप कर सकते हैं, इस प्रकार ठीक। आप कर सकते हैं। जी सर प्लीज, थैंक यू, आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा कौन से जी मुहावरे। जरूर जरूर जी, जरूर जी। yes, Anju ma'am, kindly unmute yourself. Pooja ma'am, we can wind up, time up. Okay sir. जी वाइंड अप करें सर? या जी, जी, पूछो, हाँ जी, वाइंड अप करो। बोलिए। हाँ जी जी सर। जी जी, एक दो वाक्य से मैं वाइंड अप करवाना चाहता हूँ। 2 वाक्य मैं बोलूं? हाँ बोलो जी बोलो जी बोलो, सर, प्लीज हाँ, बोलो। प्लीज। बोल सकते हो। एक छात्र ने अपने, सुनिए सभी सभी सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक छात्र ने अपने अध्यापक से पूछा, एक छात्र ने अपने अध्यापक से पूछा, गुरुजी, टीचर, आप कक्षा में किस लिए आते हैं, आप कक्षा में किस लिए आते हैं? अध्यापक ने कहा, कक्षा में आना मेरा शौक है, मैं हॉबी। तो छात्र ने सोचा, कक्षा में आना आपका शौक है, मुझे लगा आप पढ़ाने के लिए आते हैं।
छात्र कहता है, मुझे लगा कि आप पढ़ाने के लिए आते हैं। शिक्षक ने कहा, मैं पढ़ाने के लिए नहीं आता महज, कक्षा में आना मेरा शौक है। माय डियर टीचर, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, इज अ ग्रेट हॉबी। तो इसे ध्यान में रखिए, तो ही आप हिंदी की ओर आकर्षित होंगे। हिंदी बहुत ही सरल भाषा है, दिल की अभिव्यक्ति है, तो उसे अपनाइए, हृदय से अपनाइए। जब शिक्षक उसे अपनाएंगे, छात्र अपने आप उसे अपनाएगा। इसीलिए नवाचार लाइए, नवोन्मेष लाइए। सोचिए न्यूटन की भांति, सबके भांति नहीं। फल नीचे ही क्यों आया? न्यूटन ने सोचा। ऊपर क्यों नहीं गया? वो नहीं सोचा। तो उस न्यूटन की भांति सोचिए, आप कुछ नया कर सकेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। हम कार्यशाला के अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं। मिलिंद सर, आज के इस विषय पर हमें रूबरू कराने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे अनुभवी बुद्धिजीवी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आपका आशीर्वाद हम पर सदैव यूं ही बना रहे, यही मेरी कामना है। सलाम सर। शिक्षक समूह के साथ हमेशा मजबूती से खड़े होने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बीजू पिल्लई सर ने अपने व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अंत में कार्यक्रम से जुड़े समस्त प्रतिभागियों को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी ही तन्मयता और धैर्य के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की और इसे सफल बनाया। सत्र के दौरान आप सभी की अपेक्षित सक्रिय भागीदारी प्रशंसनीय रही। चलते चलते समस्त प्रतिभागियों को अटेंडेंस और फीडबैक लिंक भरने हेतु अनुरोध करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी सलाह और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नवीन चर्चा व चुनौतियों के समाधान हेतु सलाम सर और मिलिंद सर के मार्गदर्शन में हम शीघ्र इस मंच पर पुनः एकत्रित हों। इस आशा के साथ मैं माननीय सलाम सर से सत्र के समापन की इजाजत चाहूंगी और कुछ खूबसूरत पंक्तियों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देश के विकास में यूं ही अपना योगदान देते रहें। ओवर टू सलाम सर। बहुत खूब, बहुत खूब, वेल डन पूजा मैम एंड मिलिंद जी सर, वेरी वेल डन सर, थैंक यू सो मच। So very active learning was happening, and your energy level is so great, sir, and your experience was speaking, and teachers, educators were very keenly listening to the methodologies, the multiple intelligence that can be implemented in the class. So as you said, every child is unique and they learn differently through different intelligence. So I hope this session has opened up a few takeaways at least, so that teachers can change their methodology of teaching. Let us teach Hindi as Hindi language, not as subject. So there is a great difference between teaching Hindi as a subject and as a language. So that's the difference. So thank you so much, all the participants, for joining. Pooja ma'am, you did a very good job, and Milind ji, wonderful job. Thank you so much. Extra mile is very much indebted to both of you, Milind ji and Pooja ji, and all the educators for their support and cooperation. So keep connected. We will be coming up again with Vinod sir and Milind sir and all such talented educators who can contribute a lot to Hindi teaching learning. Stay connected. Swasthi rakhe. Right. And good night. Yeah, Shubh Ratri. Thank you so much. शुभ रात्रि जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, मिलिंद सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। बहुत ही नहीं आपसे मैंने बहुत सीखा, बहुत ही आपकी वाणी बहुत ही मधुर प्रभावशाली है, बहुत खूब, बहुत खूब, बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद जी। गतिविधि बहुत ही रोचक थी सर, बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद जी, सीखने मिला। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, नमस्ते।